Chaliye, good morning, my dear students. Come fast, today we are going to finalize the remaining part of Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. सब जल्दी जल्दी आ जाइए, आज हम इसका फाइनल करेंगे और ये जो फाइनल पार्ट है, गुड मॉर्निंग सब जो वेरी गुड, सब अवेलेबल रहो। तो ये जो फाइनल पार्ट है ना, इस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पार्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेल्सन मंडेला सेज that in life every man has twin obligations. Twin means two and obligations means responsibility. Nelson Mandela says that in the life of every man there are two different responsibilities. The first responsibility is towards his family, towards his father, towards his mother, towards his wife, towards his siblings, towards his children, towards his relatives. And the second responsibility is towards the people of the community which he belonged to. जिस समुदाय से वो इंसान बिलोंग करता है, उस समुदाय के प्रति एक जिम्मेदारी है और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, ठीक है। So it says that in life every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. He says that I also have two obligations, I mean two responsibilities. The first responsibility is towards my family, being a son, being a husband, being a father. I have a responsibility. At the same time, being a part of my community, being a nationalist, being an individual of my South African country, I also have a responsibility towards my country, towards my people. My people means the people belonging to my community, black skinned people. He further says that in a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक ह्यूमन सोसाइटी में, एक गुड कल्चर्ड सोसाइटी में हर इंसान अपनी जिम्मेदारी, अपनी एबिलिटी और अपनी इंक्लिनेशन यानी कि अपनी रुझान के हिसाब से और अपनी योग्यता के हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. He says कि एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था अब तक, यहाँ पे एक इंसान के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। एंड पर्टिकुलरली जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, दैट मीन्स डार्क स्किन पीपल जो है, उनके लिए ये फैमिली और अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपना नेशन, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. A man of color means dark skinned people. A man of color means dark skinned people. कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन पीपल है, उनके लिए उनकी जो लाइफ थी, जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, उन्हें सोसाइटी में डाउनग्रेड कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो बहुत important phrase है। ठीक है, a twilight existence of secrecy and rebellion, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में
एक इंसान जो अपनी ड्यूटी निभाना चाहता था, अपना कर्तव्य निभाना चाहता था, अपने कम्युनिटी के लोगों के प्रति, अपने नेशन के प्रति जो कर्तव्य निभाना चाहता था, उसको उसके कर्तव्य से वंचित कर दिया गया था और उसको एक ऐसे समाज में डाल दिया गया था जो समाज एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन पर आधारित था। यानी कि एक इंसान एक सीक्रेसी की दुनिया में चला जाता था और फिर फाइनली वो रेबल हो जाता था, विद्रोही हो जाता था, उसे सीक्रेट कर दिया जाता था, यानी कि उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, उसे समाज के जो अपर क्लास है उससे आइसोलेट कर दिया जाता था और उस इंसान को फिर बाद में रेबल बनना पड़ता था, विद्रोही बनना पड़ता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. Nelson Mandela says that initially he did not want to keep the responsibility towards his nation up. He wanted the responsibility towards his family up. He kept the responsibilities towards his family above the responsibility towards his nation. But when he realized the system of apartheid, he chose to put his nation first and his family after that. मतलब उन्होंने अपने नेशन को पहले सिलेक्ट किया और अपने फैमिली को उन्होंने बाद में सिलेक्ट किया, यानी कि अपनी फैमिली से ऊपर इन्होंने नेशन को रखा। He further says that I was not born with a hunger to be free. ये कह रहे हैं कि मैं आज़ादी की भूख से पैदा नहीं हुआ था, यानी कि जब मेरी जन्म हुई थी तो मेरे ज़िंदगी का मकसद फ्रीडम नहीं था, फ्री होना नहीं था। क्यों? बिकॉज आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था, यानी कि मुझे तो फ्रीडम मुझे गॉड ने प्रोवाइड की थी। फ्रीडम तो हर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट होता है। फ्रीडम इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। यानी कि ये सारे काम करने के लिए कहीं नदी में स्विम करने के लिए ये फ्री थे, ठीक है, किसी खुले मैदान में कुछ पिकनिक मनाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए फ्री थे, और बुल राइडिंग करने के लिए किसी बुल पे बैठ करके फिर उसकी सवारी करने के लिए, ये सब काम करने के लिए इन्हें फ्रीडम मिली थी, ये फ्री थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or lord। कह रहे कि जब तक साउथ अफ्रीका में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम थी, उस सिस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉज थे, जब तक उन लॉज को एक इंसान फॉलो कर रहा है तब तक उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। But the moment a person goes against the set laws, he has to deal with a lot of problems. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It's a question बनता है, इसको underline कर लो। Why did Nelson Mandela realize that his boyhood freedom was an illusion? It was not a reality. इन्हें क्यों ऐसा लगता है कि इनके बचपन की जो फ्रीडम थी वो रियलिटी नहीं थी, वो एक भ्रम था? क्योंकि जितने काम हम बचपन में करते हैं उतनी आज़ादी हर इंसान को मिली हुई है। हर इंसान जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे खा सकता है, ये सारी बेसिक फ्रीडम तो हर इंसान को मिली है। लोग इसे ही अपनी एक्चुअल फ्रीडम समझ लेते हैं, विच इज़ नॉट, जो कि एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। He says कि when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और जब ये कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ, बॉयहुड स्टेट से निकल के मैं अडल्ट हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि जो फ्रीडम्स मैं अभी तक एंजॉय कर रहा था, जिस आज़ादी को लेके मैं बहुत खुश था, ये आज़ादी एक्चुअल आज़ादी नहीं है। एक्चुअल आज़ादी है कि आप सोसाइटी में हो रहे काम को, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में आपकी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स डिस्पेंसेशन में आपकी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जितनी वैल्यू या जितनी प्रेफरेंस वाइट स्किन पीपल को मिल रही है सोसाइटी के हर सेगमेंट में,
उतनी ही फ्रीडम ब्लैक स्किन पीपल को भी मिलनी चाहिए। तो ये बड़े होते हैं तब इन्हें ये चीज़ रियलाइज होता है कि मेरी बचपन की जो आज़ादी थी ना, वो एक इल्यूजन थी, वो एक भ्रम था, उस आज़ादी का एक्चुअल रियल फ्रीडम से कहीं कोई लेना देना नहीं है। He further said that at first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। कह रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मैं खुद के लिए चाहता था कि मैं जो चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकूँ, मैं देर रात तक अपने घर से बाहर स्टे कर सकूँ, ये सब मैं खुद के लिए चाहता था। Later, as a man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब बाद में इन्हें एहसास होता है कि मैं किस तरह की एक लाइफ चाहता हूँ। मैं एक ऐसी लाइफ चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने मर्जी का, अपने डिज़ायर का मैं अर्निंग कर सकूँ, जो कमा सकूँ उसे अपने पास में रख सकूँ, एक शादी कर सकूँ, अपनी एक फैमिली बना सकूँ, और एक ऐसी फ्रीडम मुझे मिले जिस फ्रीडम में किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, जिस फ्रीडम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हो, बाधा नहीं हो। ये फर्दर सेज बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ that not only I was not free but my brothers and sisters were not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। बाद में जब ये बड़े होते हैं, इनमें मेच्योरिटी आती है, then he realized that not only his freedom was curtailed, not only his freedom was snatched from his thinking, from his activities, but the people belonging to his community also suffered with the same apartheid racial discrimination system। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं गई है, मेरे कम्युनिटी के जितने लोग हैं सबकी फ्रीडम चली गई है, कोई भी आज़ाद नहीं है। That is when I joined the African National Congress। तब इन्होंने डिसीजन लिया कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम में, जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तब इनकी ये फ्रीडम की जो हंगर थी, फ्रीडम की जो भूख थी, सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रह गई, ये और भी लोगों के लिए एक उद्देश्य बन गई। यानी कि अब साउथ अफ्रीका की सोसाइटी जिसमें ब्लैक स्किन पीपल थे, उन्हें ऑप्रेस किया जाता था, हरास किया जाता था, वो भी फ्रीडम चाहते थे इस अपार्थाइड सिस्टम से। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। Animate मतलब होता है energize। Animate, इस पर क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लिया। Animate means energized, ऊर्जा भर देना, किसी में हौसला भर देना, ताकत भर देना, ऊर्जा भर देना। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो चाहते थे कि उनके लोगों को एक ऐसी लाइफ मिले जिसमें डिग्निटी हो, सम्मान हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, और इस तरह की लाइफ की डिज़ायर उन्हें एनिमेट करती है, उन्हें एनर्जाइज करती है। वो चाहते हैं कि एक ऐसे सोसाइटी बने, लोग इस कदर जिए कि सबों को इक्वल राइट्स मिले, सबों को रिस्पेक्ट मिले और डिग्निटी मिले। इस सोच ने उन्हें एनर्जाइज कर दिया और एक पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने छेड़ दी। That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a loving, life-loving man to live like a monk। और कहते हैं कि इसी डिज़ायर ने अपने लोगों को डिग्निटी दिलाने के लिए, अपने लोगों को एक रेस्पेक्टफुल लाइफ दिलाने के लिए इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और इससे वो एनर्जाइज हो। और इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, ये किस तरह के इंसान बन गए? ये एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे। अटॉर्नी मीन्स लॉयर। ये एक लॉयर थे जो कानून का पालन करते थे। अब ये क्या बन गए हैं? कानून की नज़र में क्रिमिनल बन गए हैं, क्योंकि ये रेबेल हो चुके हैं, विद्रोही हो चुके हैं। एक फैमिली लविंग हस्बैंड
जिसे अपने घर से बहुत प्यार था, वो अब क्या बन चुका है, एक मॉन्क बन चुका है, एक साधु बन चुका है। एंड कह रहे हैं कि एक फैमिली लाइफ में जी रहा था, उस फैमिली लाइफ से मैं धीरे धीरे डिटैच हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल गई थी जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, तो मैं एक पब्लिक आइडेंटिटी बन गया था, एक पब्लिक फिगर बन गया था, थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे मिल गई थी अपने हिसाब से काम करने की। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी when I looked at my people suffering with this system of apartheid. उन पे restrictions थे, उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती, उन्हें फ्रीडम नहीं मिली थी, उनकी फ्रीडम स्नैच्ड हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे दुख होता था। फ्रीडम इज इंडिवाइजिबल, कहते हैं फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते आप। फ्रीडम टोटल प्रोपोर्शन में किसी को मिलनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए, टुकड़ों में फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। The chance on any one of my people were the chance on all of them, the chance on all of my people were the chance on me. कह रहे हैं कि किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन मेरे कम्युनिटी के किसी भी इंसान के ऊपर इक्वल टू पूरी कम्युनिटी के ऊपर, और पूरी कम्युनिटी के ऊपर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ना देना मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन से। So he is totally connected with the sufferings of the people of South Africa, those particularly who belong to dark skin, who were dark skin people. He further says that I knew that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed. 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लिख लो इसको। Oppressor must be liberated. Oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. बहुत important point. Nelson Mandela says, who is oppressor? The person who is oppressing someone. जो किसी को प्रताड़ित कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो ऑपरेसर है। और ऑपरेस्ड कौन है? जो उस दुख को झेल रहा है, उस प्रताड़ना को झेल रहा है। The person who is receiving, who is at the receiving end of the acts of the oppressor is called oppressed, and the person who is committing oppression on someone is called oppressor. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कोई जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनको तो फ्री करना ही है, उन्हें भी फ्री करने की ज़रूरत है। जो ऑपरेशन क्रिएट करते हैं, जो ऑपरेशन इम्पोज करते हैं, जो बैन्स डालते हैं, पोजीशन डालते हैं लोगों पे, उनको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो दोनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। ये ऑपरेस्ड इससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, और ये ऑपरेसर एक पर्टिकुलर माइंडसेट में है जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। ठीक है। He further says, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Underline कर लेना। A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. वह इंसान जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को स्नैच करता है, किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को अपने अंडर ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो भी उतना ही वो भी गिल्टी इंसान है। ठीक है, उसे भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। उसके मन में क्या भरा हुआ है? जो ऑपरेसर है उसके मन में क्या है? हेट्रेड है। हेट्रेड है उसके मन में, लव नहीं है दूसरों के प्रति। ठीक है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice means पक्षपात। जो ऑपरेसर है, जो दूसरों पे जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है, वो किस चीज का शिकार है? वो प्रेजुडिस का शिकार है, पक्षपात का शिकार है। यानी कि व्हाइट स्किन पीपल पक्षपात करते हैं, प्रेजुडिस करते हैं, किसके साथ? व्हाइट स्किन पीपल के साथ। और नैरो माइंडेडनेस दिखाते हैं, संकीर्ण दिमाग दिखाते हैं, छोटी सोच दिखाते हैं, किसके प्रति? जो ब्लैक स्किन पीपल है। तो कह रहे हैं कि जो ऑपरेसर है, जो ऑपरेस्ड है, दोनों को फ्री करने की जरूरत है। दोनों ही समाज के लिए फैटल है, दोनों ही समाज के लिए डिटरमिनेंटल है, दोनों ही समाज के लिए गुड नहीं है।
I'm not truly free if I'm taking away someone else's responsibility, someone else's freedom. कह रहे हैं कि मैं completely free नहीं हूँ अगर मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की फ्रीडम को स्नैच कर रहा हूँ, किसी के फ्रीडम पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहा हूँ. कोई मुझे भी डायरेक्शन दे रहा है, कोई मुझे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी एक स्लेव ही हूँ. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं किसी पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसी को ऑपरेस कर रहा हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Underline कर लेना इस लाइन को, लास्ट लाइन को. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो oppressed इंसान है, जो प्रताड़ित इंसान है, और जो ऑपरेशन कर रहा है, जो प्रताड़ना कर रहा है, जो किसी को सफ़र करा रहा है, दोनों के ही अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है, मानवता की कमी है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म होता है. एक सेकंड आप लाइन पे रहें जरा. जाइएगा नहीं, लाइन पे रहिएगा. ओके, ठीक है. रिप्ड मीन्स टेकन अवे. रिप अपार्ट होगा इसमें. रिप्ड अपार्ट मीन्स टेकन अवे, छीन लिया गया. फ्रीडम वॉज रिप्ड अपार्ट, फ्रीडम छीन ली गई थी. ठीक है, चलिए. ओके, सो मैंने कुछ इसमें की पॉइंट्स बनाए हैं. मैं आप जो की पॉइंट्स है, 15 की पॉइंट्स है, मैं इस की पॉइंट्स को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ कि पूरी का पूरी चैप्टर का समरी है. सो द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. जो पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है अपार्थाइड सिस्टम को रिमूव करने के बाद, उसकी ओपनिंग सेरेमनी से ये चैप्टर स्टार्ट होता है. Politicians and dignitaries from more than 140 countries attended the ceremony. दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए. नेल्सन मंडेला was then sworn in as the president of the Republic of South Africa. ये पहले elected president थे साउथ अफ्रीका के. For decades, South Africa had been the seat for white supremacy. कई दशकों तक, for decades, the white-skinned people dominated the political, social, every system of South Africa. The blacks were considered as outlaws. Outlaws means those who were not considered as someone's own. किसी का अपना नहीं, वो outlaw होता है, बाहरी. तो black skin people को लोग outlaw, दुनिया के लोगों ने क्या कर दिया था, outlaw कर दिया था, यानी कि उनके साथ relation नहीं बनाए थे उन्होंने. Their victory over apartheid was a common victory for justice, peace and freedom. This victory was meant to provide justice. This victory was meant to give freedom, equal opportunity, justice to every citizen of South Africa. Nelson Mandela was overwhelmed with a sense of history. Nelson Mandela, on the day of the inauguration, he is reminiscent of his past. He is reminiscent of his, comrades, patriots who walked hand in hand with Nelson Mandela in the movement to remove the apartheid system. So he is remembering his patriots, his who were the part of that struggling movement. The society based on racial discrimination was the harshest and most inhuman society in the world. जो सोसाइटी बनी थी अपार्थाइड के अंदर में, वो सबसे अमानवीय और सबसे कड़ा सोशल रिस्ट्रिक्शन था लोगों के ऊपर. The decades of oppression and exploitation of the blacks produced heroes like Tambo, Suslos and other South African leaders. इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से कई ग्रेट लीडर्स उभर करके आए, जैसे सिस्लस, थैम्बोस, सुबक्वीज, ये सारे ग्रेट लीडर्स सब निकल करके सिस्टम से आए.
Mandela learned the meaning of courage from such brave comrades who were ready to sacrifice their lives for the freedom of their people. मंडेला के अंदर नेल्सन मंडेला के अंदर करेज ब्रेवरी कहाँ से आई? उन्होंने करेज और ब्रेवरी अपने फेलो बीइंग से सीखा, अपने कॉमरेड से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा। उन्होंने सीखा कि एवरी मैन हैज़ twin responsibilities, हर इंसान की दो जिम्मेदारी होती है। The first one is towards his family and the second one is towards his people and country. If any black tried to be like a free human being, he was punished and isolated from the family and community. अगर कोई भी डार्क स्किन पीपल व्हाइट स्किन पीपल की तरह बिहेव करना चाहता था तो उसे सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था और उसे एक सीक्रेसी की लाइफ में जीना पड़ता था और फाइनली वो रेबल बन जाता था, विद्रोही बन जाता था वो इंसान। Mandela realized that not only he but his brothers and sisters were deprived of freedom. नेल्सन मंडेला को जब वो बड़े हुए उन्हें एहसास हुआ कि ना केवल उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है बल्कि उनके जो लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, ऑफ दिस सोशल सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। His desire for the freedom of and dignity of his people made him a rebel. अपने लोगों को के लिए न्याय दिलाना, अपने लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करवाना, अपने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाना, अपने लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, इन्हीं सभी वजह से नेल्सन मंडेला के अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है कि वो अपार्थाइड सिस्टम को रिप्लेस करे, रिमूव करे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉ कर दे। इस वजह से वो एक रेबल बन गया, विद्रोही बन गया। ठीक है, वो अपोज करने लगा अपार्थाइड सिस्टम को। दैट मीन्स ही वाज अगेंस्ट दोज पीपल हु वर डोमिनेटिंग द सिस्टम। सी ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम इज इंडिवाइजिबल। उन्हें एहसास होता है कि फ्रीडम डिवाइड नहीं की जा सकती है कि सर्टेन लोगों को फ्रीडम दे दो और सर्टेन लोगों को फ्रीडम नहीं दो। फ्रीडम हर लोगों को मिलनी चाहिए और इक्वल प्रोपोर्शन में मिलनी चाहिए। जस्टिस हर इंसान को मिलनी चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा एंड होता है और ऑलमोस्ट ये आपका फर्स्ट 5 का ये चैप्टर पूरा लेसन खत्म हो गया है। इसमें एक चैप्टर आपका बच गया, आखिरी में एक छोटा सा प्ले टाइप का है, ड्रामा टाइप का है। ठीक है ना, प्रपोजल। वो जब आप आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से ऐसे पढ़ाऊंगा वो बोरिंग लगेगा। तो अगर 3-4 दिन का भी अगर टाइम